Hello students, in today's class we are going to discuss about vegetative reproduction. After the completion of asexual reproduction, a very quick method of reproduction, fast method of reproduction, asexual reproduction, which occur in lower organisms like Monera, Protista, and some algae, they are also reproducing asexually. Okay, now we are going to discuss about vegetative reproduction. Vegetative reproduction. In how many ways vegetative reproduction occur? The plant parts which are helping for vegetative reproduction are called vegetative propagules. The plant parts which help in vegetative reproduction are called vegetative propagules. क्या बोलेंगे उनको? Vegetative propagules बोलेंगे. ठीक. There are various structures in plant parts which help in reproduction. Other than flower is a sexual reproductive part. ठीक, vegetative reproduction में क्या होगा? Other than flower, some parts are helping for reproduction in plants. Those are called vegetative propagules. And this method of reproduction seen in plants, and it leads to the formation of clones. इससे भी clones बनते हैं. Yes, vegetative reproduction also result in formation of clones. Now let us see what are the different methods of vegetative reproduction. Number 1, potato tuber. On the surface of potato, if you see carefully, on the surface of potato there are nodes. Potato के ऊपर कुछ mark होते हैं, those are nodes. And from those nodes, small birds are arising. कुछ birds निकल रही हैं यहाँ पर. These are called potato eyes. Potato eyes बोलेंगे इनको आप. Or you can call them as axillary buds also. इनको आप axillary buds भी बोल सकते हैं. Potato eyes or axillary buds. These structures are helping for vegetative reproduction. Potato eyes. In potato tuber, potato eyes or axillary buds are helping for vegetative reproduction. ये point note करना है. Okay, point to be noted. Potato eyes help in vegetative reproduction. In potato plant, these potato eyes are helping for vegetative reproduction. Farmers क्या करते हैं? ये पोटैटो को ऐसे कट कर लेते हैं, इतना स्लाइस कट करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं. न्यू प्लांट विल डेवलप. द पार्ट विच इज हैविंग पोटैटो आइज, दिस मच पार्ट विल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट. दिस मच, हर एक पोटैटो आइज से एक नया प्लांट बन सकता है. दिस इज अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये क्लास में हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ही बात करेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट ऑकर इन हाउ मेनी वेज. सेकेंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, rhizome. Second method of vegetative reproduction is rhizome. ठीक, तो rhizome क्या है? Rhizome, it is an horizontally growing underground stem, and on rhizome can be seen in case of ginger. On the ginger you can see the clear cut
डिस्टिंक्ट नोड्स, क्लियर कट डिस्टिंक्ट नोड्स देख सकते हैं आप इनके ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ राइजोम. Clear cut distinct nodes and internodes can be seen. And there are some birds are also seen arising from the surface of ginger. ये रहे birds, ठीक है, और ये रहेंगे nodes. From the nodes only birds are developing. Birds develop from nodes. And here some roots also. ये roots हैं, ठीक है. तो लिखिए what is rhizome? Rhizome is an underground stem, is an underground stem, horizontally growing stem seen in ginger में देख सकते हैं आप. It has distinct nodes and internode. It has distinct nodes and internodes. From the nodes buds are developing. From the nodes buds are developing. Buds मतलब डेवलपिंग पार्ट, अभी डेवलप होगा, उससे एक न्यू प्लांट बनेगा बर्ड से. इट विल सेपरेट, दिस बड विल सेपरेट फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट फ्रॉम द बर्ड्स. फ्रॉम द नोड्स बर्ड्स डेवलप. ठीक, चलिए ये पोटैटो ट्यूबर, ये राइजोम 2 हो गए. And on the nodes, some of the nodes we can find some scaly leaves also, brown colored leaves. Scaly leaf भी देख सकते हैं आप इनके ऊपर. ये नोड हो गए. डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड क्या बोलेंगे आप? इंटर नोड बोलेंगे. लिखिए ये नोड हो गया तो ये इंटर नोड है. दिस इज इंटर नोड and these are the scaly leaf. Scaly leaf are brown colored non photosynthetic leaf. फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो, क्लोरोफिल नहीं है उसमें. And on the surface of rhizome you can see, under surface of rhizome some of the roots are developing and these roots are called adventitious root. अब आप बोलेंगे इनको adventitious roots क्यों बोल रहे हैं? Because these roots are developing from other than radical part of the seed. Rhizome actually क्या है? Stem है, और ये stem से develop हो रही हैं roots. That's why they are called adventitious roots. The roots which develop from other than radical part of the seed, they are called adventitious roots. Bulbil versus bulb, bulbil versus bulb, दोनों भी जो है केयरफुली याद रखना है. bulbil can be seen, bulbil can be seen in agave plant. agave plant, bulbil जो है agave plant में देख सकते हैं, ठीक है. And bulbil is a fleshy multicellular structure. Bulbil is a fleshy multicellular structure. Multicellular structure. अब आइए bulb. Bulb is an underground stem. Bulb is seen in ऑनियन. ऑनियन में देख सकते हैं बल्ब. इन बल्ब fleshy leaves are present and scaly leaves are present. In bulb of onion, fleshy leaves seen inner side
fleshy leaves seen in inner side, ठीक, and scaly leaves outer side, scaly leaf outer side. देखिए बल्ब और बल्बिल में कंफ्यूज करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, बल्ब और बल्बिल में. नाउ यू क्लियरली डिफरेंशिएट द बल्ब एंड बल्बिल. देखिए बल्बिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बल्बिल का स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ बल्बिल नो स्ट्रक्चर लाइक ऑनियन, ऑनियन की तरह नहीं होता, ये बल्बिल है. ये ऑनियन में क्या होता है, ऑनियन में inside fleshy leaves are present, rings of fleshy leaves. When you cut the onion, when you see inner side of the onion, it has concentric rings of fleshy leaves and roots below. और सबसे बाहर होगा एक scaly leaf. Outer side you can see, outer side scaly leaf. This one is a scaly leaf. और ये अंदर जो है fleshy leaves हैं, fleshy leaves. This is bulb, ये bulb, bulb of onion बोलेंगे इसको, bulbil of agave. Don't confuse, okay? Both are helping for vegetative reproduction. Both are helping for vegetative reproduction. One more point to be noted here. ये बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, दीज आर ऑल यू स्टडीड ऑलरेडी इन फर्स्ट ईयर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़े हैं. बट हियर वी आर स्टडिंग देम एज ए रोल इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दे आर ऑल हैविंग रोल इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये ऑनियन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है बल्ब से. नोट क्या लिखेंगे, बल्ब इज हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, हाईली रिड्यूस्ड, बहुत छोटा स्टेम होता है बल्ब, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इज वेरी वेरी लेस. जहां से एक लीफ, जब आप ऑनियन को कट करते हैं ना, अंदर सेक्शन में देख सकते हैं आप फ्लैशी लीव्स डेवलप हो रहे हैं, दिस लाइक दिस रिंग्स. सो जहां से एक लीफ डेवलप हो रहा है दैट इज वन नोड, सेवरल नोड्स. So distance between the two node क्या होगा यहाँ पे, इंटर नोड होगा. So nodes are very very close. So take down both the diagram and take down that point also. Question पूछ सकता है, what is the highly reduced underground stem modification? Highly reduced underground stem modification बोलते हो, आप आंसर लिखना bulb. Bulb is highly reduced underground stem. Next, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर नंबर देखिए कौन सा है, फोर्थ स्ट्रक्चर, एपीफिलस बर्ड्स. फोर्थ वन इज एपीफिलस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम बोल के एक प्लांट है, एपीफिलस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम. द स्मॉल बर्ड्स डेवलपिंग फ्रॉम द लीफ मार्जिन, द adventitious birds developing from leaf margin, are called epiphyllous buds. Epi means above, phyllis मतलब leaves, epiphyllous buds बोलेंगे. It is seen in case of bryophyllum. ब्रायोफिलम में देख सकते हैं. होप द डायग्राम बल्बिल और बल्ब का हो चुका है आपका. अब यहां पर एपीफिलस बर्ड्स ड्रॉ करेंगे हम. एपीफिलस बर्ड्स,
Suppose this is the leaf of Bryophyllum plant. In case of Bryophyllum plant, what happens? The leaves are having buds developing from the margin. मार्जिन से निकल रही हैं बर्ड्स, जैसे यहां पर स्मॉल बर्ड्स आर डेवलपिंग हैविंग रूट्स, स्टेम, लीफ, छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं लीफी मार्जिन से. लेटर ऑन दीज स्मॉल बर्ड्स दे सेपरेट फ्रॉम द मदर प्लांट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएंगे. इनको हम बोलते हैं एपीफिलस buds. Buds developing from leafy margin. Epiphyllous buds. Seen in case of Bryophyllum plant. Now, fifth structure helping for vegetative reproduction is offset. Offset. पोटैटो ट्यूबर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था, राइजोम में. बस इनको क्या करना है, आप ये बर्ड्स को कट करना है, बस कट करके सॉइल में लगा देंगे. इट विल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट. ऑफसेट इट इज सीन इन aquatic plants like Pistia eichhornia. What is mean by offset? Offset क्या है? Offset, it is a one internode long short stem. One internode long short stem having rosette of leaves above, and a cluster of roots below, ठीक है. एंड एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑफसेट में कौन से टाइप का सेल डिवीजन देख सकते हैं, वेदर ऑफसेट डू माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन. तो सुनिए, ऑल द वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल दे डू माइटोटिक डिवीजन्स, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोटिक डिवीजन. ऑफसेट एंड ऑल अदर vegetative propagules perform mitotic division. कौन सा सेल डिवीजन करेंगे? ये माइटोटिक डिवीजन करेंगे. Offset and all other vegetative propagule perform mitotic division. So I will draw here offset. So this is one internode long stem like this much, having rosette of leaves above. What is mean by rosette? Very attractive, beautifully arranged leaves which are looking like a cluster of flower की तरह दिखने वाले leaves. Rosette of leaves having cluster of roots below and rosette of leaves above. और ये पूरा स्ट्रक्चर होगा वाटर के अंदर. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अंडर द वाटर. ये वाटर के अंदर है. सो दिस शॉर्ट स्टेम इट इज कॉल्ड ऑफसेट. इसी को हम ऑफसेट बोलते हैं. हैविंग रॉसेट ऑफ लीव्स अबव. व्हाट इज मीन बाय रॉसेट? और एक बार बोल रहा हूं. इफ लीव्स आर अरेंज जस्ट लाइक फ्लावर, अगर लीव जो है फ्लावर की तरह अरेंज है तो रॉसेट ऑफ लीव्स बोलेंगे. ये रूट्स हैं. whenever this stem, offset stem, break down accidentally, if any fish break down this offset, so they will develop into two separate plants. जैसे मैं यहां पे इसे ब्रेक कर दिया
So they will develop into 2 new plants from single. That's why it is vegetative reproduction. आई कॉर्निया के बारे में थोड़ा सा याद रखना है यहां पे. नोट, आई कॉर्निया को हम बोलते हैं आई कॉर्निया, आल्सो कॉल्ड वाटर हयासिंथ, आल्सो कॉल्ड वाटर हयासिंथ भी बोलते हैं इसको, और टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं आई कॉर्निया को. Why Eichhornia is called terror of Bengal? What is the reason? It is called terror of Bengal because it causes mortality of fish in large number. It causes mortality of fishes. Mortality मतलब death. Mortality of fishes in a large number. बहुत सारे फिशेस मर जाते हैं इनकी वजह से. इट कॉजेस मॉर्टैलिटी, इट कॉजेस डेथ ऑफ फिशेस इन लार्ज नंबर. इट ड्रेन्स ऑल द ऑक्सीजन, इट ड्रेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. ये वाटर में से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेते हैं, फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. एट दैट टाइम फिशेस सफर फ्रॉम सफोकेशन, ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी डेथ हो जाती है. इट ड्रेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, एज अ रिजल्ट कॉजेस डेथ ऑफ फिशेस इन लार्ज नंबर. ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए. The next sixth one शक्कर और स्टोलॉन वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. And Eichhornia, one more point to be noted, Eichhornia is also called scourge of water bodies. Scourge of water bodies बोलते हैं. Eichhornia से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना है. Eichhornia also called scourge of water bodies. Scourge of water bodies. आप बोलेंगे व्हाट इज स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज. स्कोरेज का मतलब क्या होगा? ग्रेट ट्रबल, मोस्ट प्रॉब्लमैटिक. ट्रबल को बोलते हैं स्कोरेज, ट्रबल ज्यादा मुश्किल होती है इससे, आइकॉर्निया से. आइकॉर्निया ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड, मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड. आइकॉर्निया से रिलेटेड आप और बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में भी पढ़ते हैं, आगे आएगा चैप्टर. ये पढ़े हैं ना ऑलरेडी हम बायोडाइवर्सिटी वहां पर. आइकॉर्निया इज रेफर्ड एज एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज. इट इज brought into India because of its attractive flower and now it is the most problematic aquatic weed. ये water weed बहुत ज़्यादा problem कर रहा है आज. So this much information you should remember in Eichhornia. ठीक है. चलिए next one, sixth structure which is helping for vegetative reproduction. Vegetative reproduction में sixth structure which is helping for vegetative reproduction, that is sucker. Sucker. Sucker means it is an modification of a stem. Suppose this is the mother plant. सक्कर का मतलब क्या होता है? देखिए, इफ एन अंडरग्राउंड स्टेम अराइजेस
from the base of main stem if an underground stem arises which grow obliquely above and not bending downwards, और वो नीचे नहीं आ रहा है, it is called sucker. Sucker is a modification of stem. Modification of stem from the base of main stem. From the base of main stem, a branch arises. A branch arises which obliquely grow upwards. Obliquely grow upwards. Obliquely grow upwards without returning to the ground. Without returning to the ground. ये वापस नहीं आएगा फिर. So this is called sucker. So later on ये branch जो है break हो जाएगा and it will develop into a separate plant. This is sucker type of modification. Sucker can be seen in case of PCB. PCB में देख सकते हैं. What is PCB? Pineapple, chrysanthemum, and banana में भी देख सकते हैं. ठीक है. This much information you should remember about sucker. एक ब्रांच होता है जो मेन स्टेम से निकल रहा है एंड इट ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड्स विदाउट रिटर्निंग टू द ग्राउंड. वापस नहीं आ रहा है वो. विदाउट रिटर्निंग टू द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड सकर टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन. यहां पर एक पॉइंट भी लिखना है, नोट भी लिखना है. बनाना हैज गॉट 2 स्टेम मॉडिफिकेशन. बनाना में आप सक्कर भी देख सकते हैं, बनाना में आप राइजोम भी देख सकते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड. कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे ज्यादा. बनाना हैज राइजोम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. Storage of food. And it also has sucker. It also has sucker for vegetative reproduction. For vegetative reproduction. Vegetative reproduction करने के लिए इसके पास सक्कर है. फूड स्टोरेज करने के लिए राइजोम है. बनाना आल्सो हैज राइजोम. बनाना में भी राइजोम होता है. ओके, दैट यू शुड रिमेंबर. चलिए नेक्स्ट, स्टोलॉन बोल के और एक स्टेम मॉडिफिकेशन आएगा. स्टोलॉन. स्टोलॉन मॉडिफिकेशन. सक्कर के बाद स्टोलॉन. सेवंथ वन स्टोलॉन बोलेंगे उसको. व्हाट इज स्टोलॉन? इट इज ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम. ये भी बेस ऑफ मेन स्टेम से ही निकलता है. बट व्हाट हैपन्स, इट ग्रो एरियली अबव and then bend downward, touches the ground like this. This is called stolon modification. इसी को हम stolon modification बोलते हैं. लिखिए, what is stolon? A branch arising from the base of main stem. Arising from the base of main stem. Grow aerially above, grow aerially upward, and then bend downwards, फिर थोड़ी देर के बाद वो बेंड हो जाएगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा. बेंड डाउनवर्ड्स, touches the ground. This is called stolon type of stem modification. It can be seen in case of mint,
ठीक है, मिंट के लिए है और स्ट्रॉबेरी में भी है। अभी यहां पर जो है कंफ्यूजन जो बच्चों में होता है, स्टोलॉन वर्सेस शक्कर, वेरी वेरी क्लोज टर्म्स है ना, डेफिनेशंस आर आल्सो वेरी क्लोज। शक्कर में क्या हुआ था, स्टेम इज ग्रोइंग अपवर्ड नॉट बेंडिंग डाउनवर्ड्स, बट इन स्टोलॉन ए ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द मेन स्टेम विच ग्रो एरियली अपवर्ड अप टू ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड देन बेंड डाउनवर्ड्स, दैट इज स्टोलॉन। और एक बात यहां पर, ये जो मैं एग्जाम्पल लिखा हूं मिंट स्टोलॉन में और पीसीबी शक्कर में लिखा हूं, so those example compulsory you have to remember as per this NCERT lab manual, NCERT lab manual के हिसाब से ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बिकॉज सम ऑथर्स दे राइट मिंट एज शक्कर, मिंट को शक्कर में लिखते हैं कुछ ऑथर, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की लैब मैन्युअल है एज पर दैट मिंट इज कमिंग अंडर स्टोलॉन, ये लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर ऑप्शन में अगर मिंट इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन और स्टोलॉन है ही नहीं वहां पर, दैट टाइम यू थिंक अबाउट शक्कर, लेकिन अगर स्टोलॉन भी है शक्कर भी है तो देन यू हैव टू टेक इट एज अ स्टोलॉन ओनली। ओके, चलिए अभी लिस्ट आउट करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 7 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, चलिए हम जो है लिस्ट आउट करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक लिस्ट बनाए थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिस्ट बना लेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आकर विद द हेल्प ऑफ पोटैटो आइज या पोटैटो ट्यूबर बोलो, राइजोम, बल्ब, बल्बिल, ठीक है, and then ब्रायोफिलम, एपीफिलस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, एपीफिलस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम भी याद रखना है, स्टोलॉन याद रखना है, शक्कर याद रखना है। These are all vegetative reproduction structures. Offset also, पिस्टिया आइकॉर्निया में ऑफसेट देखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहां पर। ठीक, वहां पे एक्सप्लेनेशन में हम बल्ब और बल्बिल को साथ में लिखे थे, बल्ब वर्सेस बल्बिल कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहा, कंप्लीट लिस्ट। ओके, नाउ कमिंग टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली बाई पैरेंटल होता है, मोस्टली बाई पैरेंटल, दैट मीन्स 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, 2 अलग अलग पेरेंट रहते हैं, मोस्टली बाई पैरेंटल। सेकेंड पॉइंट, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, मियोसिस ऑकर, मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपल्सरी, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, मियोसिस ऑकर, फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन को आप सिनगैमी भी बोल सकते हैं, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एज यू ऑल नो इट इज कॉल्ड fertilization, it can also be called as syngamy. Fertilization or syngamy occurs, ठीक है, क्लियर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इट लीड्स टू वेरिएशन, इट लीड्स टू वेरिएशंस इन प्रोजेनी, प्रोजेनी आल्सो कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स में चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं,
जबकि हम asexual reproduction and vegetative reproduction already we have discussed. In asexual reproduction and vegetative reproduction, clones are formed. Clone formation होता है. But in sexual reproduction, it leads to variation in progeny. That means changes occur. Variation मतलब changes. They are not alike. They are not similar. And the organism which perform sexual reproduction, जो organism sexual reproduction करता है, in those organism life is divided into 3 phases: juvenile phase, reproductive phase and old age, that is senescent age. ठीक है. An organism which is performing sexual reproduction is divided into 3 phases. जैसे human life में पहले childhood है, बचपन है, चाइल्डहुड है, फिर अडल्टहुड है एंड फाइनली ओल्ड एज है. द सेम वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, दे आर हैविंग 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज. लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the organisms which perform sexual reproduction, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, which perform sexual reproduction, they show 3 stages in life. 3 stages in life. Number 1, juvenile phase. जुवेनाइल फेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव फेज. और दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, रिप्रोडक्टिव फेज है. एंड फाइनली ओल्ड एज जो होती है, सेनेसेंट फेज, ओल्ड एज. ठीक है. रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो कॉल्ड मैच्योर फेज. मैच्योर फेज. देन हाउ यू डिसाइड द जुवेनाइल फेज एंड द रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, कैसा डिसाइड करेंगे हम प्लांट्स के अंदर? So before flowering, plant is in juvenile phase or vegetative phase. After flowering, it is reproductive phase. And when plant stop producing flower, senescent phase. Okay, these phases transition. These phases transition मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जंप करना है. These phases transition occurs with the help of hormones. अब जैसे ह्यूमंस में चाइल्डहुड है, चाइल्ड से अडल्टहुड हो जाता है. And during the conversion of childhood into adulthood, several hormonal changes occur inside the body. These phases transition occur with the help of hormones. लिखिए. In plants, अगर हम plants की बात करेंगे, juvenile phase. In plant, juvenile phase also called vegetative phase, before flowering. In plants, juvenile phase or vegetative phase occurs before flowering. Flowering से पहले होते हैं, before flowering. Once flower started appearing on the plant, that is called reproductive phase. एक बार flower आ जाएंगे plant के ऊपर तो reproductive phase. And these phases are of variable durations. These phases
आर ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, आर ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन सेम नहीं होता, सबका अलग अलग ड्यूरेशन है भाई। जुवेनाइल फेज ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो अलग रहेगा, मंकीज में अलग रहेगा, प्लांट में अलग रहेगा, इट इज नॉट कांस्टेंट। जुवेनाइल फेज कितने ईयर्स का रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज वेरिएबल है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफ्लावरिंग पीरियड, इंटरफ्लावरिंग पीरियड is also reproductive phase, is also reproductive phase in plants, in plants। अब जैसे एक प्लांट है, एक मैंगो ट्री है, और उस मैंगो ट्री को है ना फ्लावर आए थे अप्रैल मंथ में, 2020 अप्रैल में फ्लावर आए थे, ठीक है। फिर जून जुलाई अगस्त में कोई फ्लावर नहीं थे, फिर नेक्स्ट अप्रैल में फ्लावर आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू कॉल द पीरियड इन बिटवीन, इंटर फ्लावरिंग पीरियड? 2018 में फ्लावर आए थे, 2019 में फ्लावर दिख रहे ही नहीं। सो व्हाट डू यू कॉल दैट इंटर फ्लावरिंग पीरियड? एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट डू यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड? इंटर फ्लावरिंग पीरियड इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज, इसको भी आप रिप्रोडक्टिव फेज ही बोलना चाहिए। इंटर फ्लावरिंग पीरियड इज आल्सो रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। Okay, now plants are classified into annuals, biennials and perennials, classified into annuals, annuals मतलब 1 year plant, just life span is 1 year or less than 1 year, 1 year plants only। biennial 2 year plants, biennial क्या है? 2 year plants हैं। Can we have example for annual? Rice, wheat, they are annual, 1 साल होता है उनकी लाइफ बस। जबकि biennial में 2 year plant बोल रहा हूं मैं। these 2 year plants, कैरेट में देख सकते हैं आप, रेडिश में देख सकते हैं, दे आर 2 year प्लांट्स। कैरेट, रेडिश बाइएनियल हैं। एंड थर्ड वन, पेरेनियल प्लांट्स, पेरेनियल, पेरेनियल मतलब मैनी ईयर प्लांट्स, दे हैव वेरी लॉन्ग लाइफ, मैनी ईयर प्लांट्स, दे सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, पेरेनियल बोल रहे हैं उनको। इन केस ऑफ एन्युअल्स एंड बाइएनियल्स, वेरी क्लियर कट जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज कैन बी सीन। कौन से प्लांट में? एन्युअल प्लांट में आप देख सकते हैं। एन्युअल प्लांट, राइस प्लांट देखकर आप बोल सकते हैं इट इज जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, देख के ही मालूम हो जाता है। बाइएनियल में भी बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट इजी टू से इन पेरेनियल। जैसे मैं बताया आपको, मैंगो ट्री है, सो वेदर इट इज इन जुवेनाइल फेज और इन रिप्रोडक्टिव फेज बोलना मुश्किल है, बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड मालूम होना चाहिए। 2018 में फ्लावर थे मैंगो ट्री पर, 2019 में क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज ही बोलना। एक बार फ्लावर आ गए तो रिप्रोडक्टिव फेज, ओके। गैप भी अगर आ जाए 1 ईयर के बाद, तब भी रिप्रोडक्टिव फेज ही बोलेंगे। इन एन्युअल्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इन एन्युअल्स, बाइएनियल्स, very clear cut juvenile phase, juvenile, reproductive,
senescent phase can be seen. आराम से देख सकते हैं. अभी राइस प्लांट को फ्लावर आया ही नहीं, तो जुवेनाइल एक ही बार आता है प्लांट में फ्लावर. राइस की लाइफ ही 1 ईयर है, 1 ईयर प्लांट है, वो एन्युअल है. ठीक, चलिए अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और जुड़ जाएगा. इन पेरेनियल प्लांट very difficult to find these phases clearly. क्योंकि अब मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन 100 ईयर है, 100 ईयर है, उससे ज्यादा भी हो सकती है. तो प्रीवियस ईयर फ्लावर थे या नहीं थे, वहां पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला चाहिए. इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई द फेज एज जुवेनाइल फेज. अब एक मैंगो ट्री है, देखने में बहुत ज्यादा बड़ा है, 20 फीट हाइट है, बट देर इज नो फ्लावर. कैन यू गारंटी से दैट दिस मैंगो ट्री इज इन जुवेनाइल फेज? फ्लावर तो नहीं दिख रहे हैं. हो सकता है वो रिप्रोडक्टिव फेज में हो, क्योंकि उसको लास्ट ईयर फ्लावर आए होंगे, अभी नहीं है फ्लावर. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन पेरेनियल प्लांट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दीज फेजेस क्लियरली. नेक्स्ट साइड हेडिंग बनेगी, व्हाट इज मोनोकार्पिक प्लांट्स? मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? What are monocarpic plants? The plants which flower only once in their lifetime. The plants which flowers only once in their lifetime. ऐसे प्लांट जो पूरे लाइफ में बस एक ही बार फ्लावर देते हैं. The plants which flower only once in their lifetime, they are called monocarpic plant. For example, bamboo plant produces flowers only once at the age of 50 to 100 years. Bamboo plants flowers only once at the age of 50 to 100 years. 50 to 100 ईयर्स की एज में बस एक बार फ्लावर आता है बैम्बू प्लांट में. सो दैट्स व्हाई इट इज मोनोकार्पिक प्लांट. ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे अभी हम. whether size of the organism and the length of the lifespan, whether they are related or not related. Point to be noted, size of the organism and lifespan are not related. For example, the size of crow and the parrot are almost same, but लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बट लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, क्रो की लाइफ स्पैन जो है 15 ईयर्स है, और पैरेट की लाइफ स्पैन की अगर बात करेंगे तो 140 ईयर्स है. सो दैट मीन्स साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द लाइफ स्पैन आर नॉट रिलेटेड. साइज से कुछ भी डिसाइड नहीं होता लाइफ स्पैन. ठीक है, यहां पर एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी हम. इनकरेक्ट मैच मालूम करना है आपको, पहले ये लिख लीजिए. ओके, find out the incorrect match. choose the incorrect match बोल के क्वेश्चन है. choose the incorrect match.
फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है देखिए, फर्स्ट इज बल्बिल अगेव, बल्बिल अगेव। और सेकेंड है शक्कर पाइनएप्पल, शक्कर पाइनएप्पल। ट्यूबर ब्रायोफिलम and fourth option is given runner grasses, runner grasses। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दीज आर ऑल स्टेम मॉडिफिकेशंस। बल्बिल अगेव ये बिल्कुल सही है, बल्बिल अगेव में होता है, शक्कर पाइनएप्पल पीसीबी में होता है, ट्यूबर ब्रायोफिलम में नहीं होता। सो सी आंसर आना चाहिए, इनकरेक्ट मैच। रनर ग्रासेस में होते हैं, बिल्कुल सही। रनर, रनर इज आल्सो स्टेम मॉडिफिकेशन। रनर मतलब स्टेम मॉडिफिकेशन विच इज ग्रोइंग जस्ट बिलो द सॉइल, stem modification which is having a cluster of leaves above and a cluster of roots below in case of terrestrial area। हाँ, वाटर नहीं, वाटर में ऐसा कंडीशन हुआ तो क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, इसको आप रनर बोलेंगे। रनर इज सीन इन केस ऑफ ग्रास। रनर इज स्टेम मॉडिफिकेशन विच इज रनिंग जस्ट बीनीथ द सॉइल हैविंग cluster of leaves above and cluster of roots below। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेंगे। offsprings formed by which of the following method, formed by which of the following methods can be called clones, can be called clones। किनको आप clones बोल सकते हैं? offsprings formed by which of the following methods can be called as clones? गैमेटिक फ्यूजन से, गैमेटिक फ्यूजन से, और सिनगैमी से, और फर्टिलाइजेशन, और वन मोर ऑप्शन इज गिवन, वन मोर ऑप्शन वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। देखिए यहां पर second option and third option, syngamy and fertilization same, syngamy and fertilization same। what is syngamy or fertilization? Fusion of male and female gamete, fusion of male and female gametes। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं आप। गैमेटिक फ्यूजन वो भी सेम ही हो रहा है। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए बी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लोन्स आर फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और बाय asexual reproduction। तो डी इज करेक्ट आंसर हियर। क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली दोनों सेम रहेंगे। ओके तो अभी हम जो है टिल नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टर्म आएगा होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, यूनिसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल, menstrual cycle, estrus cycle, all these terms we are going to discuss next class। so यहाँ पर before start of the reproduction topic, before start of the reproduction topic एक साइंटिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी referred as father of
Indian plant embryology. Father of Indian plant embryology. Father of Indian plant embryology. And he was the first person who brought embryological character. He used embryological characters. He used embryological characters. Embryological characters in plant taxonomy. In plant taxonomy क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बिफोर रिप्रोडक्शन यूनिट एक नोट लिखा है, पंचनन महेश्वरी. इतना ही याद रखना, उनकी बर्थ कहाँ पर हुई थी और डेट ऑफ बर्थ वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है. सो जस्ट पंचनन महेश्वरी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, वेयर ही वर्कड. He worked mainly in the field of plant embryology, how plant embryos are formed, how fertilization occur in plants, and how embryo develop. That all plant embryology. And he brought embryological characters in plant taxonomy. Plant taxonomy में use करते हैं. What is plant taxonomy? Identification of plant species. Identification, characterization, nomenclature, classification of plant species, right? So that embryological characters and taxonomy are fused by this Panchanan Maheshwari. Taxonomy क्या होता है ये बताइए. Taxonomy is identification, nomenclature and classification of organism. Who coined the term taxonomy? Coined term by. Taxonomy word coined by, बताइए. APD कैंडोल. APD कैंडोल, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं. APD कैंडोल, he coined the term taxonomy. Who is referred as father of taxonomy? Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, referred as father of taxonomy. Referred as father of plant taxonomy. And he also introduced binomial nomenclature. Binomial nomenclature is also introduced by Carolus Linnaeus ने ही इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. Okay. Now, can you give an example for self-fertilization animal? Self-fertilization. That means both male and female reproductive organs are present in the same individual, and sperm is also produced by the same individual. Ovum is also produced by the same individual. Self-fertilization बोलेंगे इसको. Gametes produced by the same individuals are fused. Self-fertilization seen in tapeworm. You know tapeworm? Taenia solium. Taenia solium बोलते हैं tapeworm. It belongs to which phylum? It belongs to Platyhelminthes. Belongs to Platyhelminthes. करेक्ट है? पढ़े हैं ना? याद आ रहा है आपको धीरे धीरे? Platyhelminthes. Earthworm, of course, earthworm is bisexual animal, but earthworm never do self-fertilization. Earthworm bisexual होते हुए भी self-fertilization नहीं करते. Earthworm always do cross-fertilization. Two earthworms, they exchange their sperms. That is cross-fertilization बोलते हैं उसको. Earthworms do cross-fertilization. Earthworm do cross-fertilization. Of course they are bisexual. उनके पास भी टेस्टिस ओवरी दोनों हैं सेम इंडिविजुअल में, फिर भी वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करेंगे. दे नेवर डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन. सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे. अर्थवर्म में कौन सा फर्टिलाइजेशन है पूछेगा. अर्थवर्म डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन? दिस इज वन अर्थवर्म, सेकेंड अर्थवर्म. बोथ द अर्थवर्म एक्सचेंज देयर स्पर्म. इसके स्पर्म दूसरे अर्थवर्म में जाएंगे and this earthworm donate its sperm to another earthworm.
दैट्स कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं. सो इन टुडेज क्लास वी हैव सीन मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल से डरिए मत, लिख के याद कीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी बहुत सारे टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, मोनोशियस, डायोशियस, all that we will see in next class. Okay, we'll stop here. Thank you.